Okay. Now, first property is air occupies space. ठीक है, first property. Now, eyes on me. Lock your hands. Sit straight. Okay. See, there are two balloons with me. One balloon is without air. This is the size of a balloon. Okay. And another balloon is with air. See. That means कि जब हमने इसमें air fill की, when we have filled air in it, when we have filled air in it, जब हमने इसमें air fill की, तो see, तो इसका जो size है वो big हो गया, as compared to this balloon, as compared to this balloon, the size of this balloon is big. The size of this balloon is big. Okay, what does it mean? It means कि एयर, जो एयर हम ब्लो करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो टायर हो, चाहे वो एयर पिल्लो हो, या चाहे वो बैलून हो, तो उसमें वो एक क्वालिटीज हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. दैट्स व्हाई इसका साइज बिग हुआ. अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है, इट डोंट have a quality of occupying or a property of occupying space. अगर मैं ग्रीन बैलून में भी एयर ब्लो करती तो वो भी ऐसा दिखना था. ओके, तो वो भी ऐसा दिखना था. बट it proves that air occupies space because I am speaking loudly, my dear children. अगर आपको आवाज नहीं आ रही, मैं भी फिर कोशिश करूंगी. ओके, और देखो, अगर एयर ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती तो वो बिल्कुल ऐसा दिखना था बैलून. But the proof is with us. When we have blown, there must be a network error, my dear children. But there is a proof when we have blown air in this balloon, it has increased in size. This shows that air occupies space. Air space leti hai. Okay, this is the first experiment that you can read in your book. उसी के साथ सेकंड एक्सपेरिमेंट में दिया गया है एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जो आप खुद ट्राई करोगे. जब हम इन्वर्टेड ग्लास एक टम्बलर में डालते हैं, दैट टम्बलर इज फिल्ड ऑफ वाटर, तो जब हम वो स्ट्रेट इंसर्ट करते हैं ऐसे, तो water will not get inside it because there is air in it, and air doesn't allow the water to enter into the glass. But when we invert, जब हम थोड़ी सी inverted position में उस ग्लास को करते हैं, तो automatically airs get out and the water is filled into a glass. आज जब आप when you feel thirsty, when you go to have water, when you want to drink water, take a glass and then try to insert that glass in a bucket in a straight way. Okay, in a straight way, then you can see that कि उसमें air नहीं जाएगी, उसमें air ही air है, उसमें water नहीं जाएगा. but when you invert that inverted position में वो glass रखोगे, तो Navya, I am teaching near the window, you are looking there, and when you invert that glass, the water will come into it. This is your second experiment. This you will try at home. First, I have seen that air occupies space. See, this is an example. Okay, number second is air has weight. Air के पास weight होता है. Okay, air has weight. See, I have taken an air-filled balloons. See, my dear children. See, now my this hanger I have tied. You can try it at home too. You can try it at home too. देखो, जब मैंने इसके अंदर balloons, देखो, see, जब मैंने इसके ऊपर balloons लगाए, तो आप देखोगे मेरा जो hanger है वो एकदम straight है. But now I am going to prick man balloon. एक balloon को मैं prick करने जा रही हूँ. You can see that my hanger is turned to the balloon that is filled. See. That means it is an example that shows that air has weight.
जब मैंने दोनों बैलून्स को एक साथ रखा, यू हैव सीन कि जो मेरी हैंगर था, हैंगर की जो बॉटम रॉड थी वो एकदम स्ट्रेट थी, बट वंस आई हैव प्रिक्ड वन बैलून, उसकी रॉड एकदम थोड़ी हल्की सी टिल्टेड हो, क्योंकि इतना वेट एयर का शो नहीं होता है, हल्की सी टिल्टेड हो गई, और जो जिसके पास जिस साइड पे आपको बलून दिख रहा है वो हल्का सा टेढ़ा हो गया. सी, this is an experiment that shows that air has weight. Okay, air has weight. Now next experiment, next is air exert pressure. आपको पता है बराबर होता है, बट हमारी बॉडी जो है वो गॉड ने इस तरह से बनाई है, प्रेशर का जो वेट है वो हमें फील नहीं होता. वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट. ओके, एनीथिंग दैट हैज वेट, जिस भी चीज का वेट होगा, जिस भी चीज का वेट होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके हेड पे मैंने 10 बुक्स रख दी हैं, बिग बुक्स, थिक बुक्स, तो यू विल फील अ प्रेशर ऑन योर हेड. ओके, थिक बुक्स का एक पाइल बनाया मैंने, एंड देन I put that pile on your head, and you will see that you will feel, what you will feel? You will feel pressure on your head. In the same way, air exerts pressure. Air pressure exert करता है, और air का जो pressure है वो आप एक ब्लू जो बॉक्स बना है उसके पढ़ो वहां पे, आप वहां पे लिखा हुआ है कि एयर का जो प्रेशर है एलिफेंट, सिमिलर टू दैट ऑफ एलिफेंट वेट के बराबर होता है एयर प्रेशर. बट हमारी हम फील क्यों नहीं करते? बिकॉज जो एयर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है आउटसाइड एयर को, और दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील द एयर प्रेशर. ओके, और इस एयर प्रेशर की एग्जाम्पल, इस एयर प्रेशर का एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया भी था कैसे करना है. कार्डबोर्ड और बॉटल के साथ, you have to place a cardboard under the bottle and under a glass, and now I am going to share one thing with you, which one of your student have, which one of your student have experimented at home, and she has sent to me, and I am going to share it with you. Just see, it is there in your book also, you can have a look on it, but I have received one from one of my student, so I am going to share it with you. I hope that it's, see, now she has put a, now she is going to do the experiment, and she has shown the experiment to me. After doing it, now she is putting a cardboard, a piece of thick on it. She has put it, and now she is going to show the experiment. No, slowly and surely she is going to invert the glass. See, she is inverting the glass. Yes, this. And now slowly and slowly, after 1 minute, she is removing the hands, and she has done it. This shows that air exerts pressure. Okay, this experiment shows that air exerts pressure. जैसे हमने ग्लास फिल किया और उसके नीचे हमने एक कार्डबोर्ड रखा और उसे हम जब इन्वर्टेड पोजीशन में टिल्ट किया, तो आप देखोगे कि एयर जो है, वो जो ग्लास है वो नीचे नहीं गिरा. क्यों नहीं गिरा? बिकॉज द एयर उसमें प्रेजेंट थी, जो एयर उसकी जो वाटर के ऊपर की जो वाटर था उसने उस कार्डबोर्ड को होल्ड करके, जो नीचे जो बॉटम में एयर थी उसने उस पर एक्सर्ट प्रेशर किया, और इस वजह से वो सपोर्ट किया कार्डबोर्ड को कि वो नीचे ना गिरे. This shows that air exerts pressure. Okay, and these are all the activities that shows the properties of air. First is air occupies space, second is air has weight, and third is air exerts pressure. Okay, and now uses of air we are going to study in our next class, because you don't get a chance to ask me questions. That's why I am giving you 10 minutes to ask your questions. Okay, my dear children, I hope that now this lesson is clear to you. Now I'm coming back to you. If you have any questions, I'm here to answer your questions. Yes. Ravjot, I am unmuting you.
Just ask your question, my dear child. Yes, Ravjot. Okay, ma'am. Yes, ask your question. Ma'am, I want to ask, ma'am, there is troposphere air, then there is troposphere air. Where is in troposphere air, ma'am? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. I am not hearing you, my dear child. Just write in chat your question. Write in chat. आपकी Okay, आवाज ma'am. बहुत ब्रेक हो रही है बच्चे. Okay, till that, Okay, I ma'am. am going to unmute Ariba. Ariba, I am unmuting you. You're not getting unmuted from my side. I don't know what is the problem. Okay, I'm giving you a chance to unmute yourself. You can unmute yourself. Ariba, you can unmute yourself and ask me question. I am giving you the permission. Excuse me, ma'am. Yes, dear. Yes, ma'am. अरीबा आप हो, बाकी कोई नहीं बीच में अनम्यूट करेगा. मैंने से बारी जिसका मैं नाम लूंगी वही अनम्यूट करेगा. अदरवाइज आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन. जस्ट म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड. मैम मैंने आपसे 2 आपसे पूछा था कि हाउ इज नाइट्रोजन मेड. तो मैम आपने बोला था कि आप मुझे बाद में समझाओगे. तो मैम आपने वो समझाया नहीं. बेटा जब मैं कंपोजिशन ऑफ एयर पे पहुंचूंगी ना, फिर मैं उस टाइम आपको वो टॉपिक पिक करूंगी, नाइट्रोजन कैसे बनता है. ठीक है, अभी कंपोजिशन ऑफ एयर पे हम पहुंचे नहीं है. वो आपका एक अलग टॉपिक है इसी लेसन में कि एयर किन किन चीजों की बनी हुई है. जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे आई विल लेट यू नो, बिकॉज एवरीथिंग इज सूटेड विद इन द टाइम. ओके बच्चे. ओके अरीबा, जब मैं आपको कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीक, हम कंपोजिशन ऑफ एयर पे. आई सेड दैट काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी. Yes, beta. It's there in this chapter. You can see it is 53 page. It is on 53 page. Different constituents of air. Air किन चीजों की बनी है, वहाँ पे नाइट्रोजन लिखा गया है. Yes, तब मैं आपको सारा समझाऊंगी कि ये कैसे बनती हैं, ये कहाँ से कौन सी चीज होती है जो एक एयर पार्टिकल्स बनाती है. ओके डियर. ओके. ma'am, can you show once again video? Okay. Now Ma'am, I have not understood. who is this? May I know who is this? Mama, मैम एक बारी होल वीडियो बता सकते हो वो वाली. मैम एक बारी आप मैम एक बारी just wait. Okay, now Helene, those students whose questions are I have answered, they can just lower their hands. Okay, Helene. Ma'am, Yes. where you were telling about ions, my big sister class was there, so I have known about a little bit of ions. That part I can't understand that properly. ओके बेटा, ये जो आप जो चार्जेस वगैरह रहते हैं ना, सी जो आयनोस्फीयर है ना, आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. वो आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ोगे कौन से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसे, रेडियोस वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनको वर्क करने के लिए. तो वहां पे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दैट यू विल कम टू नो इन योर अर्लियर क्लासेस. आपको इतना याद रखना है कि आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ओके हली. Yes, ma'am. ओके, बस this was the question. Arush, Ashwika Singh. Okay dear, just ask your question. Excuse me, मैम. मैम जो ओजोन लेयर है मैम, वो जैसे जो एस्टेरॉइड्स आते हैं मैम, वो उनको जैसे मैम वो रोक सकती है. Yes, they only ozone layer is responsible to stop the harmful radiations that are coming from the sun. The harmful radiations. Okay. वो रेडिएशंस आजकल ओजोन लेयर्स में होल हो रहे हैं बिकॉज वी यूज सो मच ऑफ पॉलिथीन बैग्स and the gas that come out from the polythene bags is depleting the ozone layer. Okay, and we are in danger now. Okay dear. Okay, now next is Bhumika Singh. Yes, Bhumika Singh. Yes, Bhumika. Ma'am, that you today you are मैम जो आपने आज एक्टिविटी की है. Okay.
मैम जो आपने आज एक्टिविटी की हुई है, जो मैंने भी की थी, तो जो आपने छोटा बैलून लिया था, जो आपने 2 बैलून्स लिए थे ना, जिसको मैंने वो पिच किया, उसमें जो मैंने किया था वो थोड़ा सा जैसे आपका हुआ ना, वो जो ऊपर थोड़े से जो जिसमें थी हवा, वो हैवी हो गया, तो जिसमें नहीं थी तो उसमें नहीं हुआ, वैसे मेरा भी हो गया था। Very good, very good. Okay, very good. No, Shavin, just ask your question, beta. Be quick. Shavin, can you explain? Yes, dear. Can you explain exosphere? Exosphere, बेटा वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो बिल्कुल स्पेस के साथ है. ओके, आयनोस्फेयर से ऊपर है और इसमें बहुत कम एयर है. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट्स विजिट देयर. रॉकेट्स जाते हैं यहाँ पे इस एयर पे, इस स्पेस में. ओके, एंड दे टेक ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू breathe in oxygen. There is no oxygen. We can say equal to no oxygen in this in this layer. Okay. Okay, Shireen. Okay, dear. Thank you, Listen to me. जिसको चांस नहीं मिलेगा अनम्यूट होने का, वो नेक्स्ट जब हम साइंस की क्लास होगी तो पहले हमें उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. ओके, others kindly keep your hands down. There are so many students who want to ask. Okay, you can write your questions in your chat. You can write your questions in your chat and I am coming to the chat and I will answer your questions. Write the questions, everyone. Okay, write your questions, start writing. Ma'am, okay, video, you want to see ionosphere. Okay, Tanushri, just wait. Tanushri, आयनोस्फीयर जो है इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब हलीन ने पूछा था तब भी आप समझा करो ना, आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं. ये जो आयनोस्फीयर है ये बहुत थिन एंड कोल्ड लेयर होती है और इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी हेल्प से रेडियोस वगैरह वर्क करते हैं. ओके तनुश्री, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज शो वीडियो. ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल शो द वीडियो अगेन. ओके, जो भी वीडियो वाले क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अगेन शो करूंगी. एंड नेक्स्ट इज मैम स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, हु इज दिस? वंशिका. स्ट्रेटोस्फेयर, वंशिका बच्चे, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है. ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हार्मफुल रेडिकल्स या रेडिएशन सन से आती हैं उन्हें स्टॉप करती है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंचे और हमें हार्म ना करे. दैट्स व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर इज एन इंपॉर्टेंट लेयर फॉर अस. बट नाउअडेज ozone layer is depleting day by day due to the use of unnecessary polythene bags and the gas that is coming out of the factories. Okay, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. आराध्या कटोच, मैंने बताया था बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में और बहुत सारी लेयर ऑफ एयर से बना होता है. उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, dust particles, you can find carbon dioxide in the atmosphere and plus humidity. Okay, and Ridhima, exosphere. Okay, exosphere सबसे अबो लेयर है. एक ही क्वेश्चन बार-बार आप लोग क्यों पूछते हो? Exosphere, जब मैंने एक बार समझा दिया, then you have to listen very carefully. I have already explained this to Shireen. Exosphere is above ionosphere और ये near to the space होती है ये layer. And here there is no air, even very little air, कि हम लोग breathe भी नहीं कर पाते. इसलिए इस एरिया में हम रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं. एंड यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस की स्टडी करने के लिए जाते हैं वो जाते हैं और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं. ओके ओके, रिधिमा, एक्सोस्फीयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. ओके मैम, yes, you can take not a house, you can take a land on a moon. Okay, you can take a land now. The government have given permission, you can take, but it's just for if you are interested in the space. You are not able to live there because then you have to come again for the oxygen cylinders to go there and then to survive from there, and there you cannot even cook because it is very light and you're not able to touch the land. Okay. ओके, ओजोन लेयर मैंने बता दी सबसे हार्मफुल लेयर है. एंड वो जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और वो हार्मफुल रेडिएशंस को बचाती है. वो इज सानवी राजपूत.
You can do all the activities at home. The activities that I have done here, you can experiment it at home. Troposphere जो है वो जिस लेयर पे हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है वो हमारी अर्थ को बचाती है. ओके वो हमारी अर्थ को सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, और इसमें हर एक चीज प्रेजेंट है इस लेयर में जो हमें ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए, या यहाँ पे वेदर चेंज टेक प्लेस होता है, हम प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं. प्रीहल, ओके okay, I have shown the experiment. Janvi, you can experiment it at home and you can better know how air occupies space. जब मैंने बैलून फुलाया तो आपने देखा होगा कि वो बैलून बड़ा हो गया. अगर वो स्पेस नहीं लेता होता तो वो बैलून बिग नहीं होता कभी भी. This is one experiment, another you can try it at home. Okay, I have explained troposphere. Anshika Sharma, now you are able to understand troposphere वो लेयर है जो हमारे अर्थ के जस्ट सबसे पहली लेयर है, अर्थ के बिल्कुल पास है, और ये इसी लेयर के कारण हम सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इसमें हर वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है. ओके, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यू कैन डू इट एट होम. मैम प्लीज टेल मी व्हाट इज. ओके